अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डेडलीस्ट कॉपीराइटिंग मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट न्यूबी एंड इवन इंटरमीडिएट कॉपीराइटर्स करते हैं व्हेन दे आर राइटिंग कॉपी। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, बट आई विल आल्सो प्रोवाइड यू सॉल्यूशन टू ऑल दीज मिस्टेक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to know if you are making these mistakes in your copywriting, and you will also get super practical tips and strategies to get rid of these mistakes, significantly improve your copy, and upgrade yourself as a copywriter. This will in turn make your clients super happy, help them get more sales, and yes, help you get more clients. So make sure to watch this video till the very end, because this video can change everything for you as a copywriter. In case you're new to the channel, my name is Armash Kamal and I'm the most highly rated copywriter here in Pakistan with over 3,000 copywriting projects under my belt. And I've also put together the first ever high converting sales funnel of my own here in Pakistan. जी तो without any further ado, let's get started with our first copywriting mistake, और वो है jargon and vague language. सबसे बड़ी मिस्टेक जो न्यूबी और इवन इंटरमीडिएट कॉपीराइटर्स करते हैं, दे टेंड टू यूज jargon and fancy words when they are writing copy. And I want to tell you that fancy words and jargon only confuses people. जब आप इस तरह के fancy words यूज करते हैं, it get them to wonder what is the meaning of these words, और जैसे ही वो इस सोच में पड़ गए, sale will be lost. I want you to understand this important thing. Copywriting is not about novel writing or fiction or even poetry. In the simplest terms, copywriting is basically clear communication. You're clearly communicating to your audience about their problems, the solution that you're offering, the benefits of your product, telling them about your offer, and finally giving them a compelling call to action. And if you can clearly communicate all these things, you can rest assured that you will be able to boost sales for your clients or for your own business. So when it comes to copywriting, always choose clarity over cleverness. Don't try to get clever by using fancy words or jargon. Always choose clarity. This will help you become a better copywriter, I promise you. Mistake number 2 है writing long paragraphs and sentences. Now this is the biggest mistake that most copywriters make, is that they tend to write very long paragraphs. 3, 4, 5 लाइन के paragraphs वो लिख रहे होते हैं. And when it comes to copy, I highly recommend that you never write anything longer than 3 sentence paragraph. अगर आपका paragraph 3 sentence पे चला गया है और जैसे ही 4th पे जाने लगा है, you need to break it down. You need to move towards the next paragraph. और अच्छी practice ये है that you only write 1 to 2 line paragraphs. Because long paragraphs, they hurt readability and intimidate the readers कि यार हमें कोई बहुत बड़ा block of text पढ़ना पड़ेगा. This is what reduces engagement and gets them to close the page. और दूसरी चीज है long sentences. कुछ copywriters ऐसे हैं जो start के अंदर 3 lines, even 4 lines का sentence लिख रहे होते हैं. By sentence I mean कि वो full stop ही नहीं लगाते और 4 line long complicated sentences लिखना start कर देते हैं. This again hurts readability, intimidates the reader and even confuses them. So what you need to do is break your sentences down. To be honest, I can even get away with you writing a long paragraph, but writing a long sentence जो कि 3 lines या 4 lines का sentence हो, this is an absolute big no when it comes to copywriting. तो जब भी आपको लगे कि आपका sentence एक लिमिट से ज्यादा लंबा हो गया without putting a full stop, तो आप उस sentence को chop down कर दें, trim down कर दें, cut down कर दें, उसको short कर दें, ताकि आपके जितने भी sentences हैं आपकी overall copy के अंदर वो short और punchy sentences हैं जो जाके आपकी audience को hit करते हैं, which are easy to read, easy to digest and easy to understand. जी तो हमारी mistake number 3 है using commas to break or end your sentences. जी हाँ, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को या एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स को बताता हूँ कि आपने सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना है, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने, तो वो नंबर 1 मिस्टेक क्या करना शुरू कर देते हैं कि वो सेंटेंसेस को कॉमा पे एंड करना शुरू कर देते हैं. यानी उन्होंने एक सेंटेंस को ट्रिम डाउन किया ताकि उसको शॉर्ट कर सके, तो जिस जगह पे उसको काटा था वहां पे कॉमा लगा के फिर नीचे अपनी पूरी बात कंप्लीट करते हैं. दिस इज अ बिग नो एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट मोस्ट न्यूबी एंड इवन इंटरमीडिएट कॉपीराइटर्स मेक. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने सेंटेंस को ब्रेक करना है तो आपने कॉमा कभी नहीं लगाना, बल्कि आपने एलिप्सिस का यूज करना है, वो जो 3 डॉट्स होते हैं. और मैं अभी आगे जाके आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ. एलिप्सिस से आप ग्रामेटिकली करेक्ट रहते हुए किसी भी सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फिर अगली लाइन में जाके आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करके एंड पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, विच इज अनदर मिस्टेक जो मोस्ट कॉपीराइटर्स करते हैं कि वो जब एलिप्सिस का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो फिर एलिप्सिस लगाते चले जाते हैं इन्फिनिटली. पूरी की पूरी जो कॉपी लिखी है उसमें एलिप्सिस ही चल रहे हैं, कहीं पे जाके सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा. एलिप्सिस का मकसद है सेंटेंस को चॉप डाउन करना, ब्रेक डाउन करना लॉन्ग सेंटेंस को, लेकिन जहां
जहां पे भी आपका सेंटेंस एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है, आपकी पॉइंट, आपकी बात एक्चुअली कंप्लीट हो जाती है, दैट इज वेयर यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप। नाउ लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स, और स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा। ओरिजिनल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है, सोफी वाज ग्रेजुअली लूजिंग वेट एंड गेटिंग इनटू शेप, but she had to give up on her favorite foods and spend hours every day in the gym। जब ये एक सेंटेंस था तो मैंने कॉमा लगा के बट लिखा हुआ था। Now when you break this sentence down, तो आप क्या करेंगे, Sophie was gradually losing weight and getting into shape, ellipsis, 3 dots, but she had to give up on the foods she loved and spend hours every day in the gym, full stop। क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है। Let's take another example, whether it be SoundCloud, Spotify, TikTok, Instagram or YouTube views, comma, You can now get the best value for your buck if you act fast। इसको मैंने जब ब्रेक डाउन किया इसी सेंटेंस को, तो आप देख सकते हैं, whether it be SoundCloud, Spotify, TikTok, Instagram or YouTube views, ellipsis, ... You can now get the best value for your buck if you act fast, full stop, because यहाँ पे point आपका complete हो चुका है। So as you can tell that it is very easy to break sentences down and it adds a lot of power, makes it easy to read and instantly boost your sales। और मैंने इसी के साथ साथ आपको correct use of ellipsis भी समझा दिया कि कैसे ellipsis सिर्फ सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं। जहां पे भी आपका सेंटेंस या आपकी बात या आपका पॉइंट कंप्लीट होता है, you instantly put a full stop there। Mistake number 4, grammatical errors, and I cannot emphasize on this enough। Most newbie, beginner and even intermediate copywriters, they make the mistake of writing grammatically incorrect copy, and this is one of the biggest turnoffs for your audience। अगर आप grammatically incorrect copy अपने client के लिए लिखते हैं, his brand will lose credibility, he won't look professional to his audience, and this will obviously hurt his sales। People literally cringe at brands that have grammatically incorrect copy on their website, product pages, emails, or even ads copy। And when your client's audience cringes at them, then your clients will cringe at you and they will hate you for writing grammatically incorrect copy। Now the problem is, as a copywriter, you might have heard कि जी ग्रामर के रूल्स को डिफाई करना होता है, कभी कभी ग्रामर्स के रूल्स तोड़े जा सकते हैं, ये बल्कि अच्छी चीज होती है। कॉपी के अंदर आपको ग्रामर नर्ड नहीं होना होता, ग्रामर नाजी नहीं बनना होता। I want you to stop। ग्रामेटिकल रूल्स को डिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप ओवरऑल ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कॉपी लिखते चले जाएं। ग्रामेटिकल रूल्स को डिफाई करने का मीनिंग ये है कि आप किसी जगह स्ट्रेटेजिकली 1 या 2 ग्रामर रूल्स को डिफाई करें, सो दैट यू कैन ऐड मोर पावर टू योर कॉपी, ना कि आप सारी ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कॉपी लिखते चले जाएं एंड यू मेक योर क्लाइंट लुक लाइक एन इडियट इन फ्रंट ऑफ हिज ऑडियंस। इसीलिए एज अ बिगिनर, डिफाइंग ग्रामर रूल्स इज ऑफ लिमिट्स। मैंने आज आपको रोक दिया है। एज अ बिगिनर कॉपीराइटर, आप कभी भी ग्रामेटिकल रूल्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप चुपचाप ग्रामेटिकली करेक्ट कॉपी लिखने के ऊपर फोकस करें। जब आप प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू जज कि यार कहां पे मुझे एक आधा रूल डिफाई करना है टू ऐड मोर पावर टू माय कॉपी। एंड ट्रस्ट मी, जिन जगहों पे ये रूल्स डिफाई किए जाते भी हैं, वहां पे भी अगर ये रूल्स डिफाई ना भी किए जाए, इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस। तो डिफाइंग द रूल्स स्ट्रेटेजिकली इजंट एज हेल्पफुल as writing overall grammatically incorrect copy can hurt your brand image। इसलिए आपका ज्यादा और मेजर फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मैंने grammatically correct copy लिखनी है। Now the mistake number 5 is not doing enough research। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, लेकिन मैंने इसको नंबर 5 पे इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले मैं राइटिंग के अंदर मिस्टेक को पॉइंट आउट करना चाहता था। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, व्हिच इज द रिसर्च। बहुत से न्यूबी बिगिनर कॉपीराइटर्स ये मिस्टेक करते हैं, इवन इंटरमीडिएट कॉपीराइटर्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी ऑडियंस के बारे में अपने हेड से, अपने दिमाग से लिखना शुरू कर देते हैं। वो उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे कॉपी लिखना शुरू कर देते हैं जो मे बी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में देखे थे, या फिर उनके किसी दोस्त को वो मसला था और उसको देखते हुए उन्होंने कॉपी लिखना शुरू कर दी, सिर्फ अपनी परसेप्शन की बेस पे कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने ये परेशानियां देखी थी, या उसको ये पेन थी, या उसको ये मसला था, और अपनी परसेप्शन की बेस पे वो पूरी कॉपी लिखना शुरू कर देते हैं। इवन अपने फ्रेंड से भी बैठ के नहीं पूछते, बात नहीं करते कि यार आपको एक्चुअली क्या मसला था, अपने आप को उसके शूज में पुट नहीं करते। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस इन कॉपी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस और दैट ऑफ योर फ्रेंड्स विदाउट एक्चुअली टॉकिंग टू देम, यू आर ओनली जजिंग योर ऑडियंस। आप सिर्फ जज कर रहे हैं कि यार इनको ये मसला होगा या ये इशू होगा। आप एक्चुअली उनके साथ एम्पैथेटिक रिलेशनशिप और रपोर बिल्ड नहीं कर रहे, और आप एक्चुअली अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख के नहीं देख रहे। और वैसे भी आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मे बी दे डू नॉट
resonate with your audience because उनकी nationality, ethnicity, beliefs, country of residence ये चीजें different हो सकती हैं आपसे, और उसकी बेस पे उन्होंने जो मसले फेस किए होंगे वो different हो सकते हैं. So it's very, very, very important that you go and conduct deep research on your target audience. You go to forums, you go to YouTube comments, you go to Amazon reviews, you spend time on Google and everywhere, and you try to find out the real problems and pain points of your target audience before ever writing a single word of copy. Because let me tell you guys, right phrase pays. So when it comes to copywriting, if you write the right pain points, the right problems, the right fears, the right dreams, the right aspirations, the right hopes of your target audience, then you will be able to add tremendous power to your copy, and this will in turn increase your sales and help you become a better copywriter. So with that said, these were the 5 top copywriting mistakes that most beginner and intermediate copywriters make, and I hope that with the help of this video, you were able to realize if you are making these mistakes, and I also provided you with practical solutions to get rid of these mistakes. कमेंट सेक्शन में बताएं आप इनमें से कौन से मिस्टेक्स कर रहे थे और इस वीडियो के बाद आप उन मिस्टेक्स को छोड़ने लगे हैं फॉरएवर. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, देन मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें. और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें और पाकिस्तान की लार्जेस्ट एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स की कम्युनिटी का पार्ट बन सकें. इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कॉपीराइटिंग रिलेटेड वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज.